مسیح کے زندہ جلالی نام میں سب کو سلام۔ خدا کا شکر کرتے ہیں، باپ جی کی تعریف کرتے ہیں کہ خدا آپ نے ہمیں نئی صبح بخشی، نیا دن بخشا، تاکہ ہم شکر گزاریوں کے ساتھ اس کی پاک حضوری میں آتے ہیں، اپنے آپ کو دھوتے اور پاک کرتے ہیں، کیونکہ خداوند پاک ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی پاک ہو کر پاپ کی حضوری میں آئیں، اپنے اپنے گناہوں کا اقرار کریں گے اور توبہ کریں گے۔ اور جب ہم توبہ کر کر خدا کے کلام کو لیں گے اور خدا کی مرضی پہ چلیں گے، خدا سے یہی کہیں گے کہ یہ سانسیں جو آپ نے بخشی ہیں صرف آپ کی مرضی پہ چلیں۔ اگر ایک سانس بھی آپ کی مرضی کے مطابق نہیں تو باپ ہمیں ایسی سانسیں ہی نہیں چاہیے جہاں صرف آپ کی مرضی چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے۔ پیارے باپ جی، ہم شکر کرتے ہیں کہ ہمارے خدا کا کلام وعدوں سے بھرا ہوا کلام ہے، اور وہ جو وعدے باپ کرتے ہیں ہم اس لائق بنے تاکہ ان وعدوں کو ہماری زندگی میں پورا ہوتے ہوئے دیکھ سکیں۔ پریز دا لارڈ۔ جس طرح ہم نے دیکھا کہ کل خدا نے کہا جہاں جہاں تم جاؤ گے، جہاں جہاں جگہ پہ تمہارے پاؤں کے تلوے ٹکیں گے میں تمہیں دے دوں گا۔ پریز دا لارڈ۔ خدا نے ایسا کوئی وعدہ نہیں کیا جو وہ پورا نہیں کر سکتا۔ وہ وعدوں کا سچا خدا ہے اور وہ اپنے وعدوں پہ پورے اترتے ہیں۔ وہ انسان نہیں جو انکار کر دے، اور خدا کے کلام میں کہیں بھی نہ نہیں لکھی، اس کا ہر وعدہ ہاں میں ہے، اور ہم ان وعدوں پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ اگر آج ہم دیکھیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کس طرح خدا کے لوگ، خدا کی کلیسیا کے لوگ ستائے جا رہے ہیں۔ آج کا زندہ کلام ہم دیکھیں گے 2 کرنتیوں اس کا 4 باب اس کی 8 اور 9 آیات میں یوں لکھا ہے کہ ہم ہر طرح سے مصیبت تو اٹھاتے ہیں لیکن لاچار نہیں ہوتے، حیران تو ہوتے ہیں مگر نا امید نہیں ہوتے، ستائے تو جاتے ہیں مگر اکیلے نہیں چھوڑے جاتے، گرائے تو جاتے ہیں لیکن ہلاک نہیں ہوتے۔ پاک کلام پر جان پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو، خدا کی تعریف ہو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں چاہے مصیبتیں دکھ کتنے بھی ہو جائیں، خداوند ہمیں اکیلا نہیں چھوڑتا، کیونکہ اس نے وعدہ ہے کہ میں کبھی تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ وہ چاہے مشکلیں کتنی ہوں، چاہے دکھ کتنے بھی بڑے ہوں، ہم حیران ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن نا امید نہیں ہوتے، کیونکہ ہماری امید، ہماری آس ہمارا خداوند ہے۔ ہمارا خداوند ہمیں کبھی نہیں چھوڑتا۔ ستائے بھی جاتے ہیں لیکن اکیلے نہیں چھوڑے جاتے، وہ ہمارے ساتھ ساتھ رہتا ہے۔ گرائے بھی جاتے ہیں لیکن ہلاک نہیں ہوتے، کیونکہ جو گرائے جاتے ہیں، گر جاتے ہیں، وہ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ جو خدا پہ ایمان رکھتے ہیں، جو خدا کے کلام پہ چلتے ہیں، وہ 7 بار بھی گر جائے وہ کبھی نہیں گریں گے، وہ کھڑے ہو جائیں گے۔ اگر ہم دیکھیں تو کس طرح ہمارے خداوند یسوع سے جو ہماری نجات کا دہندہ ہوا، کس طرح اس کے ساتھ کیا گیا، کس طرح عداوت دنیا نے خداوند سے بھی رکھی۔ اسی طرح یوحنا 15:18 میں اگر دنیا تم سے عداوت رکھتی ہے تو تم جانتے ہو کہ اس نے تم سے پہلے مجھ سے بھی عداوت رکھی ہے۔ پریز دی لارڈ۔ جب وہ خداوند کو نہیں چھوڑتے تو اس کے لوگوں کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ ہم نے گھبرانا نہیں، نہ ڈرنا ہے، کیونکہ ہم نے مضبوط ہونا ہے۔ ہم نے کس میں مضبوط ہونا ہے؟ خدا کے کلام میں۔ اور جب خدا کا کلام، اس کے وعدے میرے اور آپ کے ساتھ ہیں تو ہم نے نہیں کرنا۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں دانیل کی کتاب میں 3 باب، ہم پہلے بھی سن چکے ہیں کہ نبوکدنضر بادشاہ نے جب سونے کی مورتی بنوائی تھی اور اس کی لمبائی اور چوڑائی سب کچھ اس میں بتایا گیا، 6 ہاتھ تھی، اور اسے رعایا کو اعلان کیا گیا تھا کہ جب یہ بربت بجے گا، میوزک کی آواز سنو گے، ستار کی اور سارے آواز سنو گے، تو کیا کرنا ہے؟ سونے کی مورتی کے سامنے سب کو نبوکدنضر بادشاہ نے جو نفس کی تھی گر کر سجدہ کرنا، اور جو کوئی گر کر اسے سجدہ نہیں کرے گا اسی وقت آگ کی جلتی بھٹی میں ڈال دیا جائے گا۔ اسی طرح اس کی 16-18 میں کہ صدر اور مصر اور ابو نجور بادشاہ سے جب انہوں نے نہیں کیے، یہ دانیل کے ساتھی تھے، تو جب بادشاہ کو پتہ چلا تو بادشاہ نے انہیں کہا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ انہوں نے کہا کہ اے نبوکدنضر، اس امر میں ہم تجھے جواب دینا ضرور نہیں سمجھتے۔ دیکھ، ہمارا خدا جس کی ہم عبادت کرتے ہیں ہم کو آگ کی جلتی ہوئی بھٹی سے چھڑانے کی قدرت رکھتا ہے۔ پریز دا لارڈ۔ وہ ایمان میں کھڑے تھے اور وہ بادشاہ کے آگے ڈر بھی نہیں رہے تھے۔ انہوں نے کہا تھا ہم اس بات کی تشریح بھی تجھے نہیں دینا چاہتے، تجھے بتانا بھی نہیں چاہتے، لیکن ہمارا
खुदावंद जो कुदरत वाला खुदावंद है हमें क्या करेगा, हमें उससे निकालेगा। और हमने देखा कि उनको जलती भट्टी की जो जल रही थी, उन्होंने बादशाह ने गुस्से में आके कहा इसकी जो आग है 7 गुना डबल कर दो। उन्होंने डबल कर दी और जब इन तीनों को आग में डाला गया तो वो क्या था, वो ना जले और ना उनके बालों से भी, ना उनके कपड़ों से खुशबू आती थी। सिर्फ क्यों? क्योंकि वो ईमान में खड़े थे। और ईमान में चाहे इंसान कहीं भी खड़ा हो जाए, खुदा का कलाम कहता है तुझे ज़र नहीं पहुँचेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। चाहे मुश्किलें कितनी भी हों, चाहे कमियां कमज़ोरियां कितनी भी हों, हमें बड़ी खुशी से अपनी कमज़ोरियों पर क्या करना है, फ़ख्र करना है। क्योंकि जब हम कमज़ोर होते हैं तो खुदावंद हमें क्या करता है, अपनी कुदरत से, अपनी कुव्वत से भर देता है और मसीह की कुदरत हम पर छा जाती है। प्रेज़ द लॉर्ड। और क्या करता है, खुदावंद हमारी हिफाजत करता है। हमें सिर्फ ईमान में खड़े होना है और जब हम ईमान में खड़े हो जाते हैं, आसमान और ज़मीन टल जाते हैं लेकिन उसके मुंह की बातें हरगिज़ नहीं टलती। वो हमारे लिए क्या करता है, अपने फरिश्तों को ख़ैमतज़ंद कर देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि हमारा खुदावंद हम सब से मोहब्बत करता है। अगर हम उस वक़्त तौबा भी कर लें, अगर खुदा कहता है जान देने तक वफ़ादार रहो तो ज़िंदगी का ताज पहनेंगे। हम हमेशा ये कलाम को देखते हैं, सुनते हैं कि खुदा के वादे हैं कि वो कहेगा जान देने तक। जब तक हमारे जिस्म में जान है हमने क्या करना है, खुदा के कलाम की कुदरत को ले लेना है। और इसी तरह अगर हम देख मत्ती की अंजील उसका 10वां बाब उसकी 28 आयत में यूँ है, जो बदन को कत्ल करते हैं और रूह को कत्ल नहीं कर सकते उनसे ना डरो, बल्कि उससे डरो जो रूह और बदन दोनों को जन्म में हलाक कर सकता है। आमीन। हम देखते हैं कि हमें किससे डरना है, सिर्फ खुदा से। जहाँ कहीं हम खुदा के नाम पे खड़े हो जाते हैं वहीं पे मौज़ात होते हैं। इसी तरह देखा गया है कि जो बदन को कत्ल कर सकते हैं, रूह को नहीं कत्ल सकते, उनसे नहीं डरना, क्योंकि हमारी रूह खुदावंद के साथ पवस्ता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब हम खुदा से डरते हैं, खुदा का खौफ खाते हैं, तो खुदा हमें क्या करता है, अबदी ज़िंदगी देता है। वो सिर्फ खुदा के खौफ से है, ना कि लोगों के डरने से और लोगों के खौफ से। हमें किसी से डरना नहीं, किसी से खौफ नहीं खाना। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर हम देखते हैं कि खुदा के शागिर्दों ने कितनी मुश्किलें सही, कितनी परेशानियों का सामना किया, लेकिन वो क्या थे, खुदा में मुतमईन थे और खुदावंद उन्हें क्या करता था, हौसला देता था। अगर हम देखें यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, उसने क्या किया था, सिर्फ उस बादशाह की बीवी को कहा था कि तूने अपने शोहर के होते हुए अपने भाई से, उसके भाई से शादी कर ली, तो अगलों ने उसका सर कटवा दिया था सिर्फ सच्चाई को बोलने पर। तो हमारा खुदा का कलाम सच्चा है। सच्चाई कहीं भी बयान करने से हमने डरना नहीं। हमें देखें कि हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने जो हमारे लिए कफ़ारा दे के चले गए, उन पर कितने जुल्म हुए, उन्होंने कितनी बर्दाश्त की, मारा गया, कोड़ों से ज़ख्मी किया गया, लहू लहान किया गया और बर्रे की तरह उसे ज़बह किया गया। तो मेरा खुदा जो हमें ये रास्ता सिखा गए हैं, सींच कर हमारे लिए इस रास्ते को बना कर चले गए हैं, हमने सिर्फ इस हमवार रास्ते पे चलना है। मुश्किलें ज़रूर आएंगी, तकलीफ़ें ज़रूर आएंगी, लेकिन नहीं डरना, नहीं खौफ खाना, क्योंकि मेरा और आपका खुदा हमेशा हमारे साथ है। प्रेज़ द लॉर्ड। और आज का कलाम हमें यही सिखाता है कि क्या होगा, मुश्किलें, परेशानियाँ, तकलीफ़ें, सब कुछ होगा, लेकिन हमारा खुदावंद हमें इन मुश्किलों से निकाल देता है। हमारा खुदावंद हमें फरिश्तों को ख़ैमतज़ंद कर देता है और वो फरिश्ते क्या करते हैं, अपनी गोद में हमें उठा लेते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हमने डरना नहीं, ना घबराना है, ना खौफ खाना है। वो मार नहीं सकते, क्योंकि खुदावंद हमें बचाने के लिए अपनी फ़ौजों को मुहैया कर देता है, अपनी फ़ौजें मुहैया कर देता है। हमारी जंग हमारा खुदा लड़ता है। हमें उस जंग में देखते हैं, कलाम हमें बताता है कि जब कभी ऐसा वक्त आए तो ना कि हमने देखना है कि हम अकेले उससे लड़ लेंगे। हमने जिस तरह यीशु को देखें कि वो पहाड़ पर ले गए थे और वो चाह रहे थे कि यीशु को यहाँ से फेंक दे, खुदावंद पीछे से चले हट गए थे वहाँ से। अगर वो कहते कि नहीं जी मैं तो आया ही कुर्बानी ला हूँ, नहीं दे दा कुर्बानी, नहीं, वक्त था ना खुदावंद यीशु के लिए, तो वो पीछे से
हट गए थे, वरना उनका यही इरादा था कि यीशु को उस पहाड़ी से गिरा दें। और भी हमने देखा कि इस जगह पर भी खुदावंद पर जब वो जुल्म करने लगते हैं या मारने लगते हैं तो वो पीछे से खुदावंद को पीछे से हटा देते हैं, हट जाते हैं। तो हमें भी वक्त को देख के चलना है, ये नहीं कि ओ नहीं जी कोई गल नहीं, आन दो मरन दो, यीशु ते ना ते मैं मर जाना वा। खुदा ने हम सबको हिकमत कुदरत दी है। अगर वो वक्त हमारे खिलाफ है तो हमने उस वक्त पर खुदावंद को पुकारना, ना कि अपने आप पर खड़े हो जाना है। जब हम खुदावंद को अपनी जंग देते हैं तो वो हमारी जंग को लड़ता है, प्रेज द लॉर्ड, और अपने नाम की खातिर सब कुछ करता है। हमने सिर्फ उसके नाम को लेना है। जब हम उसके नाम को पुकारेंगे, जब हम अपना आप उसे देंगे तो वही हमें छुड़ाएगा और बचाएगा और हमें हर मुश्किल से निकाल कर बाहर निकालेगा। वो पानियों से निकाल कर बाहर ले आता है, वो आग से बचा लेता है, वो सब कुछ करने में कादिर है। हमें सिर्फ खुदा को पुकारना है और जब हम उसे पुकारेंगे तो हमारी जंग, वो हम मेरी और आपकी जंग नहीं, वो खुदावंद की जंग है। वो अपनी जंग खुद लड़ता है, हमें सिर्फ उसको देना है जंग को। खुदावंद, हम इस कलाम के वसीले से शुक्र करते हैं और उन ख़ास लोगों के लिए जो आपके नाम के लिए सताए जा रहे हैं, आपके नाम के वास्ते सताए जा रहे हैं, अपने का वो मुबारक हैं। खुदा बाप जी अपने बेटे बेटियों को कुव्वत, ताकत और हिकमत भर दे ताकि खुदाम जी वो इस मुकाबले में हमेशा के लिए खड़े रहें और जान देने तक वफादार रहें। खुदा बाप, आपने कलाम मुकद्दस में लिखा है कि इससे भी बुरे वक्त आने वाले हैं। बाप, हम सब बुरे वक्तों के लिए अपने आप को तैयार करते हैं ताकि खुदाम जी ये वक्त आए तो खुदाम आप हम सब के साथ हो और ये कलाम हमारे साथ हो, हमारी हिफाजत करे, यीशु के नाम से आमीन। तमाम बीमारों को खुदावंद की पाक हजूरी में रखते हैं और उनके लिए शिफा को मांगते हैं क्योंकि यीशु शाफी है और वही शिफा देता है। और खुदावंद जी तमाम घरों के खित्ते भरे रहें। खुदा बाप, कभी किसी चीज़ की कमी कमज़ोरी ना हो। क्योंकि अगर हम ज़बूर 7:36 को देखें, कैसे लिखा है, ऐ खुदावंद तेरी शफ़क़त क्या ही बेशतर कीमती है, बनी आदम तेरे बाजू के साए में पनाह लेते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हम हमेशा उसके बाजू के नीचे पनाह मिलेगी। खुदावंद हमारी चट्टान है, खुदावंद हमारी छुपने की जगह है, खुदावंद हमारा मुक़म्म किला है, हम सब उसी में पनाह लेते हैं। आमीन आमीन। यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर हम सब के साथ साथ रहेगी और हम हमेशा खुदा के घर में सुकूनत करेंगे। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।